Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are fine. So today we'll discuss about geography and the topic is India size and location. Look, this is the topic of class 9. So let's start the class. Okay, today we have to discuss about geography. Basically, let me tell you the meaning of geography first. Geo means earth and graphy means study. So we can say geography is the study of earth. The father of geography is Eratosthenes, okay, who has founded the concept of geography, Eratosthenes, right? Then in today's class we have to discuss about India's size and location. Look, first of all I want to remind one thing that we have discussed about latitudes and longitudes in my earlier video. I will share the link with you all. Okay, revise the topic because to understand this class you have to understand the topic latitudes and longitude. Look, here I have made the model of earth, that is globe. So you all, I know you all are confronted with the thing latitudes and longitudes. Let me explain you once again what are latitudes and longitudes. Here you can check I have a globe, and first of all let us understand the meaning of latitudes. देखो, these all the parallel lines, जितनी भी parallel lines होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Latitudes. You can check here these lines, all the circles, the full circles, latitudes are full circles. ठीक है, जितनी भी ये पैरेलल लाइंस हैं ये सारी क्या होती हैं? ये होते हैं लैटिट्यूड्स, और ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है इट इज इक्वल. ओके, देन कम्स लॉन्गिट्यूड. ऑल द वर्टिकल लाइंस लाइक दिस, ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. एंड द डिस्टेंस इज नॉट सेम. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं होता. Okay, hope you have understood the difference between, basic difference between latitudes and longitude. All the parallel horizontal lines are called as latitudes and all the non-parallel vertical lines are called as longitude, right? Okay, let us move on to the topic. Look, the equator that divides the earth into two parts. Basically, this point 0 degrees Celsius is equator. This divides the earth into two hemispheres. First one northern hemisphere, second one southern hemisphere. Likewise GMT, this GMT means Greenwich Mean Time, or you can say UTC. What is UTC? UTC means Universal Time Coordinate. Universal Time Coordinate. Look, this divides the earth into another two hemisphere, western hemisphere and eastern hemisphere. जैसे इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर. लाइकवाइज ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो वर्टिकली डिवाइड करता है अर्थ को टू पार्ट्स में, एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? सो hope you have understood this thing. Then comes location of India. India की location कहाँ पर है? India कहाँ locate करता है? We have to understand this in this class. Location of India is north east hemisphere. India कहाँ पर है? इस जगह पर है, north east hemisphere में. ठीक है, north east hemisphere में you can say here. Northern hemisphere में यहाँ पर है और eastern hemisphere में इस जगह पर. ये हमें पोर्शन नहीं देखना है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है? यहाँ पर. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये जगह हमारी क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स. ऐसा क्यों है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमने क्यों कहा है? अगर हम लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे, अगर हम इन पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो अर्थ की जो इंडिया की जो लोकेशन है वो पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से इसको देखेंगे तो जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. दैट इज व्हाई वी से दैट लोकेशन ऑफ इंडिया इज नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट? Then we have to discuss the exact location कि exactly location क्या है इंडिया की. So to understand this thing you have to understand these two things, right? That I am going to explain you. First thing, in between two
parallels of latitude line, India is situated at 6 degree 4 minutes north latitude to 37 degree 6 minutes north latitude. Then in between two longitudes, India is situated at 68 degree 7 minutes east latitude to 97 degree 25 minutes ईस्ट लैटिट्यूड. क्या मतलब है इनका? देखो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट लैटिट्यूड. अब आपने बात की लैटिट्यूड्स की. इंडिया के जो लोकेशन है वो दो लैटिट्यूड्स के बीच में है. ठीक है, अब वो लैटिट्यूड्स कौन से हैं? अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो पहला आपका आता है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. देन मेनलैंड 8 degree north latitude to 37 degree 6 minutes north latitude. You can understand this through map. देखो ये जो हमारा पॉइंट है, this is our north point, 37 degree 6 minutes north latitude. Likewise, here 2 points are given, 8 degree 4 minutes north latitude and 6 degree 4 minutes latitude. Basic difference is, देखो इंडिया का जो लोकेशन है ना वो एक्चुअल में आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार तक है हमारे पास, जो हमारा इंडिया का पोर्शन है. लेकिन माना ये जाता है कि जो मेनलैंड है वो कन्याकुमारी तक है, केप कोमोरिन. तो मेनलैंड अगर आप डिस्कस करोगे तो सिचुएशन जो है दो लैटिट्यूड्स के बीच में, जैसे इस तरीके से हमारे पैरेलल्स जा रहे हैं, तो दो पैरेलल्स के बीच में, दो लैटिट्यूड्स के बीच में क्या लोकेशन है इंडिया की? आप अगर नॉर्मल एग्जैक्ट देखोगे तो 60 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. बट मेनलैंड अगर आपसे कोई पूछे, सो योर आंसर विल बी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो इस तरीके से आपको देखना है, ग्लोब हमारा है इस तरीके से, दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया की लोकेशन, राइट. देन कम्स लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो आप लॉन्गिट्यूड को कैसे देखोगे? इस तरीके से देखोगे, राइट. वर्टिकल लाइंस जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं इनके बीच में इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड, राइट. सो दिस इज आवर 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, सॉरी ईस्ट लैटिट्यूड. लुक, ये जो हमारा डिफरेंस है ना इनका ईस्ट लैटिट्यूड का. अब आपने कहा कि मैम ये तो हमारी वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो आपने ईस्ट लैटिट्यूड इसको क्यों बोला? आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई इट्स अ ईस्ट लैटिट्यूड. लुक, हमें इंडिया का वेस्ट की बात नहीं कर रही, हम यहाँ पर ग्लोब की बात कर रहे हैं. अर्थ की पोजीशन पे जो अर्थ की पोजीशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की पोजीशन की बात कर रहे हैं अर्थ में. तो अर्थ पे जो इंडिया की पोजीशन है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हम उसकी बात कर रहे हैं. तो ये वेस्टर्न पोर्शन नहीं आएगा, ईस्टर्न लैटिट्यूड आएगा. अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की लोकेशन है वो ईस्टर्न लैटिट्यूड पे है, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर ईस्टर्न लैटिट्यूड. तो ये कहाँ पर है? इट्स इन गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड. लाइकवाइज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड इज इन अरुणाचल प्रदेश. होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर स्टिल आपको डाउट है तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. सॉरी, हॉरिजॉन्टल देखोगे दो लैटिट्यूड्स के बीच में देखोगे तो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. अगर आप दो लॉन्गिट्यूड्स में देखोगे, लाइकवाइज यहाँ और यहाँ इस तरीके से देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड. क्लियर? देन कम्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन. इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करें तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट. ठीक है, ये हमारा यही आता है 82.5 डिग्री ईस्ट और इट पासेस थ्रू मिर्जापुर यूपी. कहाँ से पास करता है? मिर्जापुर से पास करती है ये लाइन, दैट इज इन यूपी. और ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडिया का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना है? 5.30 मिनट्स आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है. किससे? यूटीसी से, ग्रीनविच मीन टाइम से. मतलब लंदन के टाइम से अगर आप इसको मैच करोगे तो ये 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है टाइम पीरियड. ठीक है, 5.5 घंटे लंदन के टाइम से हमारा टाइम जो है वो आ गया है. ओके, वन थिंग
is left here, I want to tell you. आप NCERT में चेक करेंगे 9th क्लास की, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो इसके बीच में है पूरे 30 लॉन्गिट्यूड्स, और जो टाइम गैप है वो 2 आवर्स का है, मीन्स 2 आवर्स का टाइम गैप है. फॉर एग्जाम्पल जो गुजरात का टाइम है और अरुणाचल प्रदेश का लोकल टाइम है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है. अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं सुबह के 10 AM, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा 12 नून, 12 बज रहे होंगे. 2 आवर्स डिफरेंस. क्लियर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. पॉइंट्स, लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ इंडिया. अभी मैंने आपको ये पढ़ा है 68 डिग्री, 37 डिग्री. सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया. लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट नॉर्थ पॉइंट. नॉर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, सो दिस इज इंदिरा कोल. इंदिरा कोल का क्या मतलब है, ये जो हमारा पॉइंट है 1977 में इसको माना गया था नॉर्थ पॉइंट, ठीक है, लेकिन इस इज डिस्प्यूटेड. ये पीओके में पड़ता है इसीलिए ये डिस्प्यूटेड है. और अगर अनडिस्प्यूटेड आप नॉर्थ पॉइंट की बात करोगे, सो दैट इज सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है, नॉर्थ पॉइंट, देयर आर 2 नॉर्थ पॉइंट यू कैन से, वन इज डिस्प्यूटेड, अनदर वन इज अनडिस्प्यूटेड. सो जो डिस्प्यूटेड वाला है दैट इज इंदिरा कोल, और ये 1977 में बनाया गया था. और अनडिस्प्यूटेड है आपका सियाचिन ग्लेशियर. लाइकवाइज साउथ पॉइंट की बात कर लेते हैं. साउथ पॉइंट में आपका है दिस वन, इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट, ठीक है, लेकिन मेनलैंड की बात करोगे सो दिस वन, कन्याकुमारी. दिस इज कन्याकुमारी और दिस इज इंदिरा पॉइंट. साउथ पॉइंट की अगर हम बात करें, साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, सो दिस इज इंदिरा पॉइंट एंड दिस इज मेनलैंड ऑफ साउथ पॉइंट इज कन्याकुमारी, और यू कैन से केप कोमोरिन, राइट. देन कम्स वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. वेस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. सो वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुहर मोती, और यू कैन से राजेर क्रिक. गुहर मोती जो है ये इंडिया का वेस्ट पॉइंट है, और ये कहाँ पर है, इट इज सिचुएटेड एट गुजरात. लाइकवाइज ईस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, किबिथु, और इसका नाम है किबिथु, और वालंगू ऑल्सो यू कैन से. क्लियर? This is all about this lecture, India size and location. Look, this topic is not very much hard. You have to just revise the topic. You have to understand the topic. Then hope it's clear to you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you like the video, give it a hit, share and subscribe. I really need your support. If you really like the channel, you can share it to your friends also. Thank you for watching.